गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज फोर्थ डे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूपिंग स्टेटमेंट पर हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल समझेंगे। कल हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लैडर, नेस्टेड और स्विच स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल समझा था। आप लोगों ने असाइनमेंट्स भी बहुत अच्छे बनाए हैं। नाउ टुडे आई विल पब्लिश डे 4 असाइनमेंट। अगर किसी को किसी समय भी डिफिकल्टीज आती है तो क्यूरियस इन्फोटेक सॉल्यूशन के ऑफिशियल ईमेल आईडी info@curiousinfotechsolution.com में अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इस पीपीटी में हमें दिख रहा है कि देयर आर 3 काइंड ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। The first is sequential control structure and second is conditional control structure and third is looping control structure. So by name sequence, one statement then other statement will automatically follow each other. In sequence control structure, there is no decision or there is no control on the user. Statement 1 के बाद statement 2, statement 2 के बाद statement 3, statement 3 के बाद statement 4. Then the program will terminate. But in the conditional control structure, so in this control structure, there is a condition and this condition provide two branch. One is true and second is false. As condition become true, हम true statement को execute करते हुए if block से बाहर आएंगे and condition अगर false होती है तो false statement को execute करते हुए if block से बाहर आएंगे। Now come to the last control structure, that is the looping control structure. Now in looping, very first you have to check condition. अगर condition सही है तो true statement को follow करेंगे, true branch को follow करते हुए true statement को execute करेंगे और फिर से back to the condition पर चले जाएंगे और जैसे ही condition false होती है we will come out from the looping block. So I hope this slide is very clear and very informative. इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। Now we will see the second slide. So very first we will understand what is need of loop. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं
write a program to display hello world 10 times. क्योंकि हमको लूपिंग नहीं पता है तो we have to write 10 statement individual. In every statement there is hello world. अगर 10 से ज्यादा है, जैसे 500 है या 10,000 है, तो at that time it is not suitable to write such kind of programming because it requires time and this become as a time complexity. एक और प्रोग्राम से चेक करते हैं. Let write a program to read and display any 10 number. तो very first we have challenge how to make 10 variable, क्योंकि हर वेरिएबल यूनिक होना चाहिए. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एक टेक्निक है जिससे हम 10 वेरिएबल को याद रख सकते हैं. अदरवाइज अगर हम ए बी सी डी से स्टार्ट करेंगे तो हर बार समझना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल किसके बाद आता है. अब यहां पर ध्यान से देखिए. वेरी फर्स्ट यू हैव टू राइट 10 स्टेटमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. तो ये 10 बार यहाँ पे लिखा है, हर एक बार वेरिएबल का नाम बदल दिया है. तो ये भी एक प्रोग्राम अगर 10 के लिए है तो दिख रहा है कि इट इज ए वेरी मच अननेसेसरी. यहाँ पे अगर लूप लगाएंगे तो हो सकता है केवल एक ही स्टेटमेंट से हम प्रोग्राम बना सकते हैं. तो इट इज नॉट बेनिफिट फॉर द मेकिंग सच टाइप ऑफ द प्रोग्राम. हम लूप यूज करके इसमें कोई टेक्निक लगा के मिनिमम प्रोग्राम की लाइन नंबर्स को मैनेज कर सकते हैं. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ लूपिंग. तो यहां ध्यान से देखिए. ए लूप इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम is an instruction that repeats until a specific condition is reached. जैसे ही condition specific reach होगी, we will terminate our loop block. So here we will understand how many types of loop in C program. So normally there are 3 kind of loop statement. First is while loop, second is for loop, third is do while loop. Now here we can also understand this loop can be classified into 2 broad categories. First, entry control loop and second, exit control loop. So in entry control loop, the condition is tested before entering the loop. And example of entry control loops, one is the for loop and second is the while loop. On the other hand, exit control loop, इसमें क्या होगा? The test condition, ठीक है, important word is test condition, is tested or we can say evaluated at the end of loop body. तो
कंट्रोल लूपिंग ब्लॉक में कंडीशन लास्ट में चेक होगी। एंड डू वाइल लूप इज ए एग्जाम्पल ऑफ exit control loop. Now we will see the next slide. We will understand how we can analysis loop in C language or computer language. So we have a objective, let to display natural number series from 1 to 10. तो जब भी इस तरीके की सीरीज हमें मिलती है, we have to directly jump to the looping concept. तो इस टाइप के सीरीज में हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं? The first observation is find the first number of in series. तो यहाँ पे 1 is a first number. Now find last number in this series. तो 10 is a last number. तो ये दो चीज हमें पता हो गई कि पहला नंबर और लास्ट नंबर क्या है। अब हमें एक इंपॉर्टेंट तीसरी चीज निकालनी है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है। नाउ बिटवीन दिस से 3 4। अब 3 4 में डिफरेंस कितना है? 1 है। 6 7 में डिफरेंस कितना है? दैट इज अगेन 1 है। 9 10 में डिफरेंस कितना है? दैट इज अगेन 1। इट मीन्स हियर देयर इज कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर। तो ये तीन चीजें किसी भी सीरीज में हमें ध्यान रखनी पड़ती है। इसी को ध्यान रखते हुए प्रोग्राम बनाएंगे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने कंसेप्ट समझ लिया है, अब हमें कंट्रोल फ्लो को समझना है। हर एक लूप का अपना एक यूनिक कंट्रोल लूप है। तो सबसे पहले देखेंगे हम व्हाइल लूप का कंट्रोल फ्लो डायग्राम। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि कंडीशन, क्योंकि इट इज ए एंट्री कंट्रोल, तो हियर ऑल्सो वी हैव व्हाट। देखिए ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कंडीशन पर ही पहुंचेगा और ये कंडीशन दो ब्रांच हमें देती है। 1 इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। तो अगर ये कंडीशन करेक्ट है तो ये ट्रू साइड में हम जाएंगे और ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। अब ट्रू ब्लॉक के बाद वी विल फॉलो द बैक टूवर्ड्स द अगेन चेकिंग कंडीशन। अगर कंडीशन सही है फिर से यही वाली पाथ को फॉलो करेंगे और फिर वापस फिर कंडीशन चेक करने के लिए आएंगे। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स ब्रांच को फॉलो करेंगे और इस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल फ्लो ऑफ व्हाइल लूप। अब हम देखते हैं डू व्हाइल लूप। तो देखिए डू व्हाइल लूप में सबसे पहले आपको कोड जो कि ट्रू ब्लॉक कहलाएगा उसे एग्जीक्यूट करना है। अब ये ब्लाइंड ब्लॉक कहलाएगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, पर इस ब्लॉक के बाद जो भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा वो कंडीशन ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट होगा। तो लेट इफ कंडीशन इज ट्रू, तो ये ट्रू ब्लॉक को हम फॉलो करेंगे
और फिर कंडीशन चेक करेंगे। और ये इस तरीके से रिपीटिशन ऑफ दिस ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी इससे बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज द यूर विजुअलाइजेशन कि किस तरीके से ये लूप डू वाइल लूप वर्क करता है। अब हम देखेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप में स्ट्रक्चर बहुत ही अट्रैक्टिव है, मैक्सिमम प्रोग्रामर इसी को यूज करते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें ध्यान रख के लूप बनाना है। पहला है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, लूप का इनिशियलाइजेशन करेंगे और उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। तो अगर ये कंडीशन सही है तो फिर ट्रू ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट करेंगे और जैसे ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इंक्रीमेंट होगा लूप वेरिएबल। तो नेक्स्ट टारगेट के लिए हमको लूप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन अगेन ट्रू है फिर लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे और फिर बैक टू दी चेकिंग कंडीशन पर चले जाएंगे। अब अगर कंडीशन जिस समय फॉल्स होगी ये सीधा फॉल्स ब्लॉक पर आएगी और फॉर लूप से हम बाहर निकल के आ जाएंगे। तो दिस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ फॉर लूप। तो हमने तीनों लूप का कंट्रोल फ्लो को समझ लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हाउ वी कैन एग्जीक्यूट लूपिंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंस। तो यहां पे इसको जो पिछली स्लाइड है उसी को इलॉबरेट करके बता रहे हैं। जैसे वाइल लूप है, तो वाइल लूप में सबसे पहले एंट्री पॉइंट वाइल है, उसके बाद देखिए ये डायरेक्टली सेकंड होके कंडीशन में आएगा और अगर ये कंडीशन सही है तो डायरेक्टली यहाँ 3 पर होते हुए यू विल रीच टू दिस 4। फिर ये जो ब्लॉक ट्रू ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन कम आउट टू दिस ब्लॉक। यहां से वापस हम जाएंगे, वापस कहां जाएंगे, कंडीशन पर जाएंगे और अगर फिर से कंडीशन सही है तो प्रीवियस पाथ को ही फॉलो करेंगे और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ब्रांच को फॉलो करते हुए वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ एग्जैक्टली वाइल लूप। नाउ डू वाइल लूप। तो देखिए डू वाइल लूप में बाय डिफॉल्ट सबसे पहले इंटरेक्शन होगा डू का, फिर करली ब्रेसेस रहेगा, उसके द्वारा हम बॉडी लूप में इंटर करेंगे। वहां पे ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हुए कंडीशन वाइल पर आएंगे। वाइल में जो कंडीशन हमें अगर ट्रू देती है तो यहां से हम ट्रू ब्लॉक की तरफ फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फिर से वापस जाएगा, फिर बॉडी ऑफ लूप में इंटर करेंगे और फिर यहां से वाइल लूप में आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो जब ये फॉल्स है तो ये फॉल्स ब्लॉक को फॉलो करेंगे और डू वाइल से बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज द वे हाउ डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटिंग। लास्ट इज द फॉर लूप। तो फॉर लूप में पहला जो ऑपरेशन होगा वो होगा इनिशियलाइजेशन ऑफ फॉर लूप। जैसे इनिशियलाइजेशन होगा गो फॉर द चेकिंग कंडीशन। कंडीशन चेक होने के बाद हम अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक को फॉलो करेंगे और ये करली ब्रैकेट पर जाएंगे। करली ब्रैकेट के में जो भी बॉडी में स्टेटमेंट लिखे हैं दैट इज ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट उसे एग्जीक्यूट करेंगे। फिर वहां से बाहर ये फॉलो होगा और सीधा कहां जाएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के इंस्ट्रक्शन पे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद
हम फिर से ये कहाँ जाएगा, कंडीशन चेक होगा। अब अगर कंडीशन सही है तो प्रीवियस पाथ को सेम टू सेम फॉलो करेंगे, अदरवाइज फॉल्स ब्लॉक को फॉलो करते हुए इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड द फॉर लूप। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम लूप के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वेरी सिंपल है, 1 to 10 मतलब यहाँ पर सीरीज आना चाहिए 1, 2, 3 अप टू 10। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइल लूप में। तो व्हाइल लूप में यहाँ हमें इस ब्लॉक को देखेंगे तो इट इज ए व्हाइल लूप। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले इस फ्रॉम 1 to 10, तो 1 is the first number, 10 is the last number, एंड बुलियन कंडीशन क्या बनेगी, फर्स्ट नंबर लेसर देन इक्वल टू लास्ट नंबर। तो अगर ये कंडीशन सही है तो हमें आउटपुट भी 1 मिलेगा। फिर 1 को इंक्रीमेंट करेंगे और इसके बाद फिर से व्हाइल लूप में चले जाएंगे। व्हाइल लूप में फिर कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन सही है तो फिर हम नेक्स्ट नंबर को प्रिंट करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर को एक इंक्रीमेंट देके न्यू नंबर लाएंगे, फिर ये कंडीशन चेक होगी। इसी तरीके से हमें आउटपुट 10 मिलेगा और हम 11 पर कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि 11 लेसर देन इक्वल टू 10 कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम यहां से बाहर आ जाएंगे। सिमिलर लॉजिक हम देखेंगे डू वाइल से। तो देखिए डू वाइल में भी यही कंसेप्ट है, पहला लाइन तो एज इट इज है, यहाँ डू लिखेंगे, फिर प्रिंट से हम पहला नंबर प्रिंट करेंगे दैट इज fn, फिर fn को इंक्रीमेंट करेंगे और कंडीशन चेक करेंगे। तो प्रोसेस तो वही है जो आपके वाइल लूप में है, ओनली सिंटेक्स डू वाइल का। इसके बाद सीधा आप आ जाइए इन द फॉर लूप। तो फॉर लूप में देखिए पहला नंबर वही है, लास्ट नंबर भी वही है। फिर फॉर fn इज इक्वल टू 1, तो यहाँ मैंने 2 बार रखा fn इज इक्वल टू 1 क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप है। तो इनिशियलाइजेशन किस पर है, fn पे। तो fn लेस देन इक्वल टू लास्ट नंबर, फिर fn को इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन सीक्वेंस क्या है वो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। तो सबसे पहले fn इज इक्वल टू 1 होगा, फिर fn को लास्ट नंबर से चेक करेंगे, अगर कंडीशन सही है तो प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद fn को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर fn चेक होगा कि कंडीशन सही है कि नहीं, फिर प्रिंट एफ में जाएंगे। ये एक रिपीट लूप चलेगा और इसके बाद जैसी कंडीशन रॉन्ग होगी यहाँ से बाहर निकल के कर्ली ब्रैकेट पे आएंगे और टर्मिनेट हो जाएगा ये पूरा प्रोग्राम। तो दिस इज द विजुअलाइजेशन कि हाउ दिस प्रोग्राम इज रनिंग। ठीक है, नाउ अब हम दूसरी स्लाइड में एक नया प्रोग्राम देखते हैं। लेट कि यूजिंग व्हाइल लूप डिस्प्ले सम ऑफ सीरीज, यहाँ पे हमें सम निकालना है इस सीरीज का। तो ये तो हमें पता ही है कि सीरीज कैसे जनरेट होती है, वो पिछले प्रोग्राम में हमने देखा, उसी प्रोग्राम को एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पे नई चीज क्या है, एक तो सम इज इक्वल टू 0 एक न्यू स्टेटमेंट है, एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस fn। तो इसके द्वारा हम पूरे सम को, पूरे सीरीज को समेशन निकाल लेंगे और लास्टली उसे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट लॉजिक टू अंडरस्टैंड द
sum of this series. अब हम एक नया और प्रोग्राम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हमें सम तो निकालना है लेकिन इनफाइनेट नंबर का निकालना है, यहाँ पर फाइनेट नंबर नहीं है। ठीक है, तो फाइंड सम ऑफ पॉजिटिव नंबर इफ इंटर द नेगेटिव नंबर। जैसे अगर हमने नेगेटिव नंबर इंटर किया तो लूप विल एंड। ठीक है, और उसका हमें बेसिकली सम भी नहीं निकालना है। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई हैव टू वेरिएबल इंट नंबर और इंट सम इज इक्वल टू 0। नाउ टेक फर्स्ट नंबर। मैंने एक नंबर इनपुट लिया। अब ये इनपुट सपोज आपका पॉजिटिव नंबर है, तो यहां पर हम इसको चेक करेंगे। अगर पॉजिटिव नंबर है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर करेंगे। अगेन वी हैव टू टेक अनदर नंबर फॉर द नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव डालता हूं तो फिर से आपके पास यही वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर ये सम एग्जीक्यूट होगा, फिर नया नंबर लेंगे। तो ये चलता चलेगा जब तक कि हमारे पास क्विट होने के लिए, जो कि नेगेटिव नंबर का इसके अंदर में क्विट होने के लिए ऑप्शन है। आप नेगेटिव नंबर देंगे तो हम इस फॉर वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। नाउ डिस्प्ले द सम। जो भी आपके पास लास्ट सम होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट न्यू प्रोग्राम। Now see the which is the next program. तो यहाँ पे हमें एक नंबर रीड करना है। दिस इज वेरी पॉपुलर प्रोग्राम। एक नंबर रीड करना है और इसका हर डिजिट का हमें एक ऐड करके सम निकालना है। तो यहाँ पर नंबर है 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ कैसे होगा देखिए। सबसे पहले वेरिएबल बनाया हमने इंट n, सम इज इक्वल टू 0 और m। देन यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है, असाइन कर दिया एक नया वैल्यू 1 2 3 4 जो हमने ऑब्जेक्टिव में बोला है। अदरवाइज इनपुट भी ले सकते हैं। नाउ मेक द व्हाइल लूप। अब ये व्हाइल लूप बनाया है, तो इन दिस व्हाइल लूप सबसे पहले यू चेक द इनपुट नंबर, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर रिमाइंडर निकाल रहे हैं, यानी हर वैल्यू जो कि सबसे पहले क्या आएगी 4 आ जाएगी, फिर यहाँ पर उसे डिस्कार्ड कर रहे हैं 4 को बाय द डिवीजन ऑफ नंबर। तो 1 2 3 4 डिवाइड बाय 10 यू विल गेट ए 1 2 3, क्योंकि इंटीजर है। ठीक है, एट द लास्ट n बिकम 0। एक एक करके हटते जाएंगे तो लास्ट पे क्या नंबर बचेगा 0 बचेगा। तो 0 ग्रेटर देन 0 इज आंसर फॉल्स। तो इसके बाद इसे हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे एंड देन एंड द प्रोग्राम। तो इट इज ए वेरी पॉपुलर एंड इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। इसमें हमने सीखा कि नंबर के डिजिट्स को कैसे अलग करते हैं और कैसे उसके डिजिट को सम कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द अनदर प्रोग्राम। यहाँ पे हमें एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो किसका टेबल बनाना है? हमें बनाना है 15 का टेबल। ठीक है, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, ऐसा करके 15 12 जा 180 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक इनपुट लेंगे, दैट इज n। तो n को हम इनपुट ले रहे हैं, तो 15 हो जाएगा एंड देन वी हैव ए फॉर लूप जो 1 से 12 तक चलेगा। फिर इस 15 को और 1 को हम प्रिंट करेंगे और ये हमारे पास में है मल्टीप्लिकेशन n इंटू j। इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आउटपुट %d में डिस्प्ले कर देंगे। तो दिस इज द वे हाउ टू गेट ए आइडिया ऑफ अवर लूप। तो लूप का हमारे पास आइडिया मिल सकता है। ठीक है, नाउ द अनदर 2 important point, one is the break,
सेकेंड इज द कंटिन्यू। ठीक है, इन दोनों को हमें एक एग्जाम्पल से समझना है। नाउ लेट दिस ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक को ऑलरेडी वी हैव सीन इन द प्रीवियस यूनिट और द ट्यूटोरियल दैट कि इट विल बी यूज इन द स्विच में हमने इसे यूज किया था। तो इट वॉज यूज्ड इन जंप आउट कैटेगरी। इसका मतलब है ये जंप आउट जैसा कल्चर होगा इन द स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट कैन आल्सो यूज इन द लूप फॉर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा, जंप आउट रहेगा। ठीक है, नाउ वी विल सी द एग्जैक्टली प्रोग्राम देख लेते हैं। नाउ दिस इज द प्रोग्राम। नाउ इन दिस प्रोग्राम लेट फॉर लूप है जो 1 to 10 चल रहा है और एक कंडीशन है। इस कंडीशन में ये बोला गया है कि इफ i इज इक्वल टू 4 एंड ब्रेक, तो जैसे ये ब्रेक होगा हम कहाँ जाएंगे, हम बेसिकली यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और रिटर्न पे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो दिस इज द बेसिकली पाथ व्हेन दिस विल इनकाउंटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आना चाहिए 1 2 3, क्योंकि i जैसे ही 4 होगा ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नाउ अपोजिट है कंटिन्यू। तो चलिए कंटिन्यू पर अपन ध्यान देते हैं। अब नाउ व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यू, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स द इटरेशन को ही ये ब्रेक कर देगा, बस केवल जिस पर जहां पर लगा है वहीं ब्रेक कर देगा और उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यू लगा है, तो as this continue will occur means whenever condition execute I is equal to 4, तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे फिर से लूप के अंदर। ठीक है, फिर से लूप के अंदर चले जाएंगे। इट मीन्स पहले तो 1 मिलेगा आउटपुट, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 के बाद ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पर हमको 5 मिलेगा तो 5 प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा और 10 भी प्रिंट होगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू और ब्रेक काम करते हैं प्रोग्राम में। मेरे ख्याल से अगर डाउट है तो आप जरूर पूछें, अदरवाइज मेक ए गुड प्रोग्राम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिस्प्ले पैटर्न। ठीक है, ये बहुत लॉजिक जनरेट करने के लिए बहुत यूजफुल है डिस्प्ले पैटर्न। ठीक है, आपको पैटर्न क्या करना है, इस टाइप का पैटर्न करना है। तो इस पैटर्न पर ध्यान दीजिए, एक जैसे ही पैटर्न है। ठीक है, एक लाइन, इसमें रो एंड कॉलम का कंसेप्ट है। तो कितने रो हैं, 1 2 3 4 5, 5 रो है। और कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो 5 बाय 5 है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक फॉर लूप जो कि आपका 5 बार चलेगा। तो ये जो बता रहा है रो बता रहा है, तो रो 1 में 1 to 5 है ना, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5। इन एवरी रो देयर इज ए प्रिंट ऑफ दिस 5 स्टार। तो व्हेन i is equal to 1 you have to display 5 star. Likewise i is equal to 2 5 star, 3 5 star, 4 5 star, 5 5 star and then end of the for loop। और उसके बाद हम टर्मिनेट करेंगे प्रोग्राम को। तो ये एक लॉजिक बताने के लिए है। अब आपको थोड़ा कठिन वाला देंगे। ठीक है, तो हियर वी हैव द सिमिलर कंसेप्ट बट द लॉजिक इज रिपीटेड। यहाँ पर देखिए एक एक एरो कम हो रहा है, लेकिन लेफ्ट से कम होते जा रहा है ना, लेफ्ट से कम होते जा रहा है। इसी तरीके से ये वाला हम देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, राइट से ये कम होते चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरीके से कम हो रहा है और ये इस तरीके से कम हो रहा है। ठीक है, थर्ड प्रोग्राम क्या है, डायमंड बनाने का प्रोग्राम। यानी डायमंड
कितने फॉर लूप बनेंगे ये आपको समझ के बनाना है, ठीक है। तो जरूर बना लेंगे, कोई बात नहीं, और ट्राई करेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द लास्ट टॉपिक, दैट इज द नेस्टेड लूप इन सी प्रोग्राम। तो देखिए सी प्रोग्राम में नेस्टेड लूप का कंसेप्ट क्या है। नेस्टेड लूप बिल्कुल नेस्टेड इफ जैसा ही है, जैसे कंडीशन में हमने नेस्टेड लगाया था वैसे ही है। तो अगर ये फॉर में लगा रहे हैं आप, तो फॉर के अंदर फॉर है, तो इट इज ए फॉर, ठीक है, इट इज ए फॉर, फॉर के अंदर फॉर है। नाउ सिमिलरली वाइल के अंदर वाइल, ठीक है। इसी तरीके से डू के अंदर डू है। तो जब भी कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, फॉर के अंदर वाइल, वाइल के अंदर डू, डू के अंदर फॉर, कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसा आपको जरूरत पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट में आप बना सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी द वन एग्जांपल ऑफ दिस नेस्टेड लूप। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। दिस इज द लास्ट प्रोग्राम ऑफ टुडे, डे 4। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ए पैटर्न, पैटर्न बनाना है हमको, ठीक है। अब ये पैटर्न आपका नेस्टेड लूप का है। तो हियर द वी हैव ए फॉर लूप, एक फॉर लूप है आपका, और इस फॉर लूप में और एक इन अंदर साइड में है। तो इट इज ए व्यूअर आउटर फॉर लूप एंड दिस इज द इनर फॉर लूप। तो इनके द्वारा वी आर गेटिंग ए दिस टाइप ऑफ रिजल्ट। तो कुछ गलती है या कुछ समझ में नहीं आया या कुछ डिफिकल्टी है तो जरूर पूछें। अदरवाइज ईमेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं, जैसा भी आपको कम्युनिकेशन करना है आप कर सकते हैं, और आप असाइनमेंट बनाने के लिए बी रेडी। ओके, थैंक यू।